Good evening, my dear students. Good evening, all. So last class we discussed about the structure of the word, the structure of the pollen grain, and how the formation of pollen grain that I discussed in last class. In the part we discussed the gametogenesis, that is this gamete formation, two gamete, the male gamete, how is it form already learned. So today we learn the how the female gamete form. That female gamete form in the word, that is the pistil, that is gynecium. In the gynecium, what happened? The female uh, gamete will be formed. So let's knowing about that. So you know gynecium also known as pistil. Gynecium also known as the word pistil. So the gynecium also known as the word, that the gynecium is also known as the pistil, and the pistils having also known as the carpel, and in the three-part stigma, style, ovary, already told that, and ovary have many ovules, that is called megasporangia. So look at this figure that. So generally they have three parts: stigma, style, and ovary. And inside the ovary, the presence of the what? The presence of the ovules. Inside the ovary, presence of the ovules. Ovules also known as megasporangia. Like that pollen grain को क्या कहते थे? Microsporangia. So here is the ovule is known as the what? Megasporangia. And which is attached to the tissue inside the ovary is called the what? Placenta. जो tissue के साथ attach हुआ है उसको क्या कहते हैं? Placenta और ovarian cavity और locules. And the placentation is that will be learned that a number of ovules in ovary is the wheat is one. व्हीट में कितना ओव्यूल्स रहता है? ओनली वन ओव्यूल्स. पेडी मैंगो आप लोग देखे होंगे, उसमें से एक ही ओव्यूल्स रहता है और एक ही ओव्यूल से अपना सीड बनता है, एक ही सीड बनता है. लेकिन इन केसेस ऑफ पपैया, वाटरमेलन्स और चीड्स, दे हैव many number of seeds, so many number of ovules. So if the one number of ovules, that is called monocarpellary, उसको क्या कहते हैं? Monocarpellary. If the more number of ovules, that is called multicarpellary, इसको क्या कहेंगे? Multicarpellary. That is called what? Multicarpellary. And the pistil fused together, that is term is called syncarpous. If the pistil अगर फ्यूज होता है, उसके साथ सारा जो pistil जितना आपका फीमेल पार्ट अगर फ्यूज होता है तो उसे कहते हैं सिनकार्पस. अगर फ्री रहता है तो उसे कहते हैं एपोकार्पस, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए क्लास 11 में. So like the different shape of the that is given the ovule shape. So let's know that one, the orthotropous. For the orthotropous किसे कहेंगे? The micropyle, chalaza and funicles are straight line, and this is the primitive type of ovules. तो ये एक primitive type of ovules है. तो ये दिया है example piper, polygam, cycas. इसमें से आपका इस तरह से ऑर्थोटोपस, दिस इज द ऑर्थोटोपस. तो देखिए इसका जो ऊपर एंड एक रहता है माइक्रोपाइलर और चालाजल एंड. माइक्रोपाइलर एंड ये स्ट्रेट रहता है, ये तीनों क्या होता है? स्ट्रेट रहता है. अनाट्रोपस टॉर्च द 180 डिग्री. वन एज द इन्वर्टेड ओवल्स माइक्रोपाइल्स लाइज क्लोज टू हिलम. तो यहाँ पे माइक्रोपाइल किसके सर है? हिलम के पास है. जो ओवल स्टॉक को क्या कहते हैं? हिलम. तो इसके पास है तो इसे कहते हैं अनाट्रोपस. अनाट्रोपस मीन्स इन्वर्टेड, दैट इज द इन्वर्टेड ओव्यूल्स. अदरवाइज क्या कहेंगे? उल्टा ओव्यूल्स. ये ऊपर की हो स्ट्रेट है, ये इन्वर्टेड है. एंड द कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल्स कर्व एंड लेस राइट एंगल. ये है कैम्फिलोट्रोपस, सॉरी ये डी दिया है, डी इज द कैम्फिलोट्रोपस, ये वाला है. एंड इज फाउंड इन लिग्नेशी. लिग्नेशी मतलब आपका जितना मूंग का प्लांट है उसमें आप लोग का इस तरह का ओवल्स मिलेगा. And hemianatropous means they have the 90-degree angles upon the follicle body of ovules and right angles to the funicles. That is the ranunculus ovules. ये example है क्या? Ranunculus ovules. Then next दिया है amphitropous ovules. Amphitropous ovules, this is the amphi means both. The as well as embryo से corp like a horse so. तो ये corp like a horse so की तरह दिखाई देता है. उसका embryo देखो, इसका embryo किस तरह दिखा? horse so की तरह दिखाई देता है. ये जो embryo है उसका horse so की तरह दिखाई देता है. So it is called the word, that is the amphitropous ovules. इसका example है alisma, lemla, ये सब examples है plant. Then सिनियोट्रोपस ओव्यूल्स, इसमें कितना डिग्री एंगल होता है? 360 डिग्री. देखिए यहाँ पे एंगल्स कितना हो गया ओव्यूल्स का? 360 डिग्री ओव्यूल्स. एंड सो फॉनिकल बिकम कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल्स. इसमें फॉनिकल जो है अराउंड हो जाते हैं. फॉनिकल्स द अराउंड्स इन द ओव्यूल्स.
So they becomes is called that is synotropous, sorry, synotropous. And an example is the word that is the opuntia. Opuntia जो आपका नागफनी होता है ना, तो उसका जो है वो है opuntia जो है, that is the example of the this type of ovule. So this is the different types of ovules. तो हम लोग तीन पार्ट पढ़े, that is the what the three parts, that is the stigma, style and ovary. ovary के अंदर क्या है, ovules. So ovules से ही seed बनता है, तो different ovules रहता है. किसी का मोनो एक ही ओवल्स रहता है, जैसे पैडी राइस, इसमें एक ही ओवल्स रहता है, और बाकी जो है आप लोग का वाटरमेलन है और आपका पपाया है, इसमें से बहुत सारा सीड रहता है, तो बहुत सारा ओवल्स भी रहता है. तो यहाँ पे कुछ ओवल्स का स्ट्रक्चर दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवल डिफरेंट प्लांट में होता है, तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. तो यही डिटेल्स दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स. ये आपका फॉर्मेशन होने के बाद ही फॉर्मेशन होगा, तो दिस व्हेन द मेच्योर ऑफ ओव्यूल्स देन उसका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा. तो जो मेच्योर ऑफ ओव्यूल्स होता है तो उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड, दैट इज द वर्ड द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. दैट इज जब मेगास्पोर फॉर्मेशन, एक सेल जब फॉर्मेशन हो जाता है तब जाके ओव्यूल का मेच्योर होता है. तो यहाँ पे एक मेच्योर ओव्यूल्स दिया है, दैट इज नाम इज द मेगास्पोरेंजियम. क्या है इसका नाम, मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल्स. और ये एक अनाट्रोफस ओवल्स का एग्जांपल दिया है. तो लेट्स नोइंग दैट. तो ओवल्स का डिफरेंट पार्ट दिया है. तो एक है फनिकल, हिलम, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोफाइल, चालाजा, निस्लस एंड एम्ब्रियो शेक. तो लेट्स नोइंग अबाउट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस. फर्स्ट इज द फनिकल. तो फनिकल का है, दिस इज कॉल्ड फनिकल. इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फनिकल. इसको फनिकल्स कहते हैं. जो है ओव्यूल स्टॉक, दैट इज कॉल्ड फनिकल्स. नेक्स्ट क्या दिया है आपका, हिलम. नेक्स्ट इज द वर्ड hilum. तो hilum कहाँ प्रेजेंट है, लेट्स नो इन दैट. The hilum means just junction between the follicles and the ovules. इस junction को क्या कहते हैं, hilum. hilum किसे कहेंगे, the body of ovule with the follicle region called the hilum. The ovules fuse with the follicles, that is junction between ovule and follicle. जो अभी बता रही थी, the junction between ovule and follicle, that is called hilum. So let's make that hilum कहाँ है, sorry, hilums. This is the this फॉनिकल्स. ये जो फॉनिकल और ये जो ओव्यूल्स, ये है फॉनिकल और ये ओव्यूल, दोनों के बीच में जो जंक्शन है, ये जंक्शन को कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड हिलम. उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड हिलम. उसको क्या कहेंगे, हिलम. यहाँ पे नहीं दिया है, मेंशन किया नहीं है. ये जंक्शन को क्या कहते हैं, हिलम. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज द वर्ड integuments. Integuments means integument. Each ovule has an one two protective envelope. It's called the integuments. That is called inner integument and outer integument. तो यहाँ पे दिया है each ovule is circled by a protective layer. So that is called integuments. इसको क्या कहेंगे, this is called integument. देखो inner integument एक outer integument. तो ये inner integument है और ये outer integument. मतलब ये ovules को to the point. So here is the inner integument और here is the outer integument. तो ये inner integument, ये है outer. ये दोनों को क्या है, इसको कवर करके रखा है. Then come the next part. Yes. ये देखिए आपका दो इंटेगुमेंट्स है, एक इनर इंटेगुमेंट्स और आउटर इंटेगुमेंट. ये ओवल को कवर करके रखा है, उसे कहते हैं इंटेगुमेंट्स. नेक्स्ट कम द नेक्स्ट पार्ट इज दैट. नेक्स्ट इज द माइक्रोपाइल. नेक्स्ट इज द वर्ड माइक्रोपाइल्स. तो माइक्रोपाइल्स किसे कहेंगे, व्हाट इज माइक्रोपाइल्स. यस.
तो माइक्रोपाइल किसे कहेंगे? द इंटेगुमेंट्स लीव स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल्स एंड दिस इज द एंड ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। तो इंटेगुमेंट में एक स्मॉल ओपनिंग रह जाता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। एक स्मॉल ओपनिंग रहता है, तो लेट्स ब्रिंग दैट, व्हाट इज द स्मॉल ओपनिंग? ये देखिए, ये जो इंटेगुमेंट में एक छोटा सा ओपनिंग रहता है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रोपाइल्स। तो ये जो स्मॉल ओपनिंग है इसी को कहते हैं माइक्रोपाइल्स। तो ये है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट चारों ओर होकर एक जगह खुला रहता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल का ऑपोजिट एंड को क्या कहते हैं? चालाजा एंड। क्या कहते हैं? चालाजा एंड। तो ये दिया है ऑपोजिट ऑफ चालाजा एंड। चालाजा एंड मीन ऑपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड द चालाजा एंड एंड दिस इज द बासल पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। इसको अदरवाइज क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द बासल पार्ट। क्या कहते हैं? बासल पार्ट। तो ये है आपका बताई रही, दिस इज द चालाजा। जस्ट ये माइक्रोपाइल होगा तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? चालाजा एंड होगा। दिस इज चालाजा एंड एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, तो ऑपोजिट रहता है। देन नेक्स्ट इज द न्यूसेलस। न्यूसेलस मीन्स इसे कहेंगे द टिश्यूज एनक्लोजेस एम्ब्रियो शेक। जो टिश्यूज एम्ब्रियो शेक को एनक्लोज करता है उसे कहते हैं न्यूसेलस। दैट इज कॉल्ड द वर्ड न्यूसेलस। तो ये जो एम्ब्रियो शेक है, ये टोटल एम्ब्रियो शेक को जो कवर करता है, दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? न्यूसेलस। ये है आपका न्यूसेलस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स। ये स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड ओव्यूल्स। Then next is the embryo sex. Embryo sex means this is the important thing. The embryo sex means ये जब mature होता है, and ovule generally has a single embryo sac or follow megaspore through the reduction of division the nucleus 7 cell. तो generally ये है आपका, this is the embryo sac. इसको क्या कहेंगे? embryo sac. देखिए ये total जो है embryo sac है, और ये embryo sac जब ये जो अंदर का जो सेल है, ये 3 3 6 2 8 सेल, ये जब मेच्योर होता है तब फॉर्म होता है। लेकिन जब मेच्योर ये ओव्यूल्स नहीं होता है तब तक ये एम्ब्रियो सेक खाली रहता है। और ये एम्ब्रियो सेक मैच्योर्स कब होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ द वर्ड, बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। दैट इज एक सेल फॉर्मेशन होगा, फिर apparatus फॉर्म होगा, एंटीपोडल्स फॉर्म होगा, 2 एंटीपोडल्स। ये जो 7 सेल स्ट्रक्चर जो होता है तो उसे कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, और तब जाके ये एम्ब्रियो सेक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में डेवलप होता है। दैट इज मेगास्पोर उसमें डेवलप होता है। द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? मेगास्पोर। तो ये गया द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में क्या रहा? फर्स्ट इज द फर्स्ट पार्ट इज द व्हाट? फॉनिकल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? फॉनिकल। द फॉनिकल मींस द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल्स। ओव्यूल स्टॉक को क्या कहेंगे? फॉनिकल। द ओव्यूल स्टॉक इज कॉल्ड व्हाट? फॉनिकल। देन हिलम। हिलम किसे कहेंगे? जंक्शन बिटवीन। ये आता है क्वेश्चन, व्हाट इज हिलम? द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल्स एंड फॉनिकल्स, दैट इज कॉल्ड हिलम। जो अटैच हुआ है इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हिलम। देन कम टू द यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हिलम। इसको क्या कहेंगे? हिलम कहेंगे। देन नेक्स्ट दिया है क्या आपका? नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स किसे कहेंगे? इंटेगुमेंट्स, तो दिस इज कवर। तो कवर ऑफ द ओव्यूल्स इज 1 2 लेयर्स। तो इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट, एक आउटर इंटेगुमेंट, उसको कहते हैं इंटेगुमेंट। देन उसके बाद माइक्रोपाइल। ये इंटेगुमेंट एक सब जगह कवर होता है, एक जगह स्मॉल ओपनिंग छोड़ देता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। और माइक्रोपाइल का जस्ट ऑपोजिट एंड को कहते हैं चालाजल एंड। चालाजल एंड इज कॉल्ड द बासल एंड ऑफ what? The basal end of ovule. देन उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या दिया है? इंटेगुमेंट, चालस, देन न्यूसेलस। नेक्स्ट क्या है? न्यूसेलस। तो एम्ब्रियो सेक जो है इनकी कवर बाय ए लेयर, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। क्या कहेंगे इसको? ये देखिए, ये एम्ब्रियो सेक जो है कवर बाय ए थिकी लेयर, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। ये न्यूसेलस कहते हैं। देन उसके बाद दिया क्या है? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक मीन्स ये आपका एम्ब्रियो शेक है, और ये एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है? ये जो सेल है ये मेच्योर होने के बाद ही फॉर्म होता है, दैट इज एक सेल। तो ये 3 जो है सिनर्जिड सेल, तो ये बासल एंड में, और ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड। तो चालाजल एंड बासल एंड में 3 सेल रहता है, उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। कौन सा सेल कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ये जब मेच्योर होता है तो ये फॉर्म होता है। ये मेच्योर कैसे फॉर्म होगा उसको हम पढ़ेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये एंटीपोडल जो होता है 3 सेल को क्या कहते हैं? एंटीपोडल। और उसका जस्ट ऑपोजिट सेल को कहते हैं, दैट इज 3 में से बगल 2 सेल को कहते हैं सिनर्जिड, और बीच में जो सेल को कहते हैं एक सेल। यही आपका इंपॉर्टेंट है, जो एक सेल किस तरह फॉर्म होगा उस बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, इसी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देन यहाँ पे दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस। बाकी जो 2 सेल रह गया, ये 2 सेल क्या
हो जाएगा, ज्वाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। तो ये मेच्योर होने के बाद पड़ेगा, तब जाके मेच्योर ओव्यूल होगा। तो हम अभी पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, दैट इज एम्ब्रियोसेक तक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या, द मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड द मेगास्पोर। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।